بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب ہے آیت نمبر 67 وَإِذَا اور جب واو استنافیہ ہے، اذا ظرف زمان ہے، مسا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور کم ضمیر ہے ضمیر متصل جمع مذکر حاضر کے لیے جو کہ مفعول بے ہے۔ الدر کوئی مصیبت، دعاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مسا کا فاعل ہے۔ فی البحری سمندر میں، فی حرف جار ہے، البحری اسم مجرور ہے اور فی البحری مرکب جاری ہے۔ ضلا گم ہو جاتے ہیں، دعاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ من تدعونا جنہیں تم پکارتے ہو، من اسم موصول ہے، تدعونا فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، دال عین اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الا سوائے، حرف استثناء ہے، یاہو اس کے ضمیر منفصل ہے اور منصوب ہے حرف مستثناء کی وجہ سے۔ فلما پھر جب، فا حرف عطف ہے، لما ظرف زمان ہے، نجاکم وہ نجات دیتا ہے تم کو، نون جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، نجا فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مفعول بے ہے۔ الال بری خشکی کی طرف، الا حرف جار ہے اور البری اسم مجرور ہے اور یہ الال بری مرکب جاری ہے۔ عارت تم منہ موڑ جاتے ہو تم، عارت یہ فعل ماضی ہے اور عارت تم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ وکانا اور ہمیشہ سے ہے، واو حالیہ ہے اور کانا یہ فعل ناقص ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ الانسان انسان، حمزہ نون اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے اور کانا کا اسم ہے اسی لیے یہ حالت رفع میں ہے۔ کفورا بڑا ناشکرا، کافا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ کانا کی خبر ہے اور حالت نصب میں ہے۔ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے اور اس کا بامحاولہ ترجمہ ہے جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ یہاں پہ سمندر کا ذکر اس لیے ہے کہ وہاں انسان کے پاس ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے موت کے سائے میں ہوتا ہے۔ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اس کا مطلب یہ ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک بھی جب ڈوبنے لگتا ہے تو اسے اپنے بت، پیر یا کوئی بھی معبود یاد نہیں رہتا بلکہ اس کی زبان پر صرف اللہ کا نام ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی اصلی فطرت صرف ایک خدا کو پہچانتی ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ
جیسے ہی انسان خطرے سے نکل کر محفوظ مقام یعنی خشکی پر پہنچتا ہے تو وہ پھر سے شرک اور نافرمانی کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اپنے اس رب کو بھول جاتا ہے جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ جملہ انسان کی اس عام روش کی مذمت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور زندگی بچانے جیسی عنایت کے باوجود احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابی جہل بھاگ کر سمندر کی طرف نکل گئے تاکہ یمن پہنچ جائیں۔ سمندر میں طوفان آیا تو ملاحوں نے کہا آج کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اکرمہ کے دل میں فوراً خیال آیا اگر سمندر میں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے تو خشکی پر بھی وہی معبود ہے۔ انہوں نے وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر بچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں گے، اور جیسے ہی وہ بخیریت پہنچے وہ ایمان لے آئے۔ افا امن تم، تو کیا بے خوف ہو گئے تم؟ حمزہ استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، امن تم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان یخسفا، یہ کہ وہ دنسا دے، ان حرف ناصبہ ہے اور یخسفا فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ہا سین اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بکم، تمہیں، بی حرف جر ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی جو حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور بکم جو ہے مرکب جاری ہے۔ جانب البری، خشکی کی جانب، جانب یہ اسم ہے واحد مذکر اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، جیم نون اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ البری اسم معرفہ ہے اور حالت جر میں ہے کیونکہ یہ جانبا کا مضاف الیہ ہے، اور یہ جانب البری مرکب اضافی ہے، او یا حرف عطف ہے، یرسلا بھیج دے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علیکم، تم پر مرکب جاری ہے، علی حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور یہ مرکب اس میں جاری ہے حاسبن پتھر برسانے والی آندھی۔ یہ حاسبن اسم فاعل ہے واحد مذکر کے لیے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، ثم پھر حرف عطف ہے، لا تاجدو نہیں تم پاؤ گے، لا حرف نفی ہے اور تاجدو فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، لکم اپنے لیے، لام حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور یہ مرکب جاری ہے۔ وکیلا کوئی کارساز اسم ہے واحد مذکر کے لیے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، واو کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب سے دنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ آفا امن تم ان یخسفا بکم، بکم جانب البر، اس حصے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان سمندر کی موجوں سے بچ کر خشکی پر آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں دھنسا دینا صرف سمندر تک محدود نہیں، اللہ تعالیٰ خشکی کے اوپر بھی زمین کے اندر دھنسا دینے پر قادر ہے، جیسا کہ اس نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ او یرسلا علیکم حاسبا، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں نہ دھنسائے تو آسمان سے ایسی آندھی بھیج سکتا ہے جو تم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ اس کی مثال قوم لوط ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کیا تھا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی بھی تمہیں بچانے والا، حمایتی یا وکیل نہیں ملے گا جو اس سزا کو ٹال سکے۔ اس آیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اکثر قارون کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا واقعہ دیا گیا ہے کہ جیسے خشکی پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا تھا۔ اور اسی آیت کے مفہوم کی تائید کے لیے سورۃ ملک کی آیات ہیں 16 سے 17 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے یا وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر جگہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ سمندر میں ہو یا خشکی پر۔ اب ہے آیت نمبر 69، ام امن تم، یا بے خوف ہو گئے تم۔ ام حرف عطف ہے اور امن تم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان یعیدکم، یہ کہ وہ دوبارہ لے جائے تمہیں، ان حرف ناصبہ ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یعیدہ فعل مضارع منصوب ہے واحد مذکر غائب کے لیے، عین واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کم ضمیر متصل ہے مفعول بے کی جگہ پر ہے اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، فی ہی اس میں، فی حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے اور سمندر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تارتن اخرى، دوسری بار، تارتن یہ اسم نکرہ ہے مفعول مطلق ہے یا ظرف زمان ہے اور اخرى اسم ہے صفت ہے، حمزہ خا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فیرسلا پھر وہ بھیجے، فا حرف عطف ہے، یرسلا فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر مرکب جاری ہے، علی حرف جر ہے اور کم ضمیر مجرور ہے جمع مذکر حاضر کے لیے،
कासिफा तोड़ देने वाली। ये कासिफा इसम ये है, इसमें फाइल है, मफूल बे है और इसका रूट वर्ड है काफ स्वाद और फा। मिना रीह ही आंधी, मिन हरफ जर है और अर्रीह ही इसम मजरूर है और ये मुरकब जारी है। फयुगरिकाकुम, फिर वो गरक कर दे तुम्हें। फयुगरिका ये फेले मजारे मंसूब है। गाइन रा और काफ इसका रूट वर्ड है और उसमें कुम जो है ये जमीर है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। बिमा उस वजह से जो, और ये मुरकब जारी है, बी हरफ जर है, माँ जो है ये सम मौसूल है। कफर तुम कुफर किया तुमने, फेले माजी है जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। काफ फा और रा इसका रूट वर्ड है। सुम्मा फिर हरफ अतफ है जो ताखीर या तरतीब के लिए आता है। ला ताजिदू ना पाओगे तुम, ला जो है ये हरफ नफी है, ताजिदू फेले मजारे है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। वाव जीम और दाल इसका रूट वर्ड है। लकुम अपने लिए मुरकब जारी है। ला हरफ जर है, कुम जमीर मजरूर है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। अलैना हमारे खिलाफ, ये भी मुरकब जारी है। अला हरफ जर है और ना जमीर है और मजरूर है। बिही इस पर, बी हरफ जर है और ही जमीर मजरूर है और इस गर्क करने वाले फेल की तरफ लौट रही है। तभी आ कोई पीछा करने वाला। ताबा और आइन इसका रूट वर्ड है, इसम मफूल के मानी में है और इसका बामुहावला तर्जुमा है या तुम बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी बार इसमें ले जाए, फिर तुम पर तोड़ देने वाली आंधी भेज दे, फिर वो तुम्हें गरक कर दे इसकी वजह से जो तुमने कुफर किया, फिर तुम अपने लिए इस पर हमारे खिलाफ पीछा करने वाला कोई ना पाओगे। हम अमिन तुम अन युईदकुम फीही तारतन उखरा, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा इसी समंदर के सफर पर ले आए। इंसान जब एक बार समंदर की होलनाकियों से बचकर खुश्की पर आ जाता है तो समझता है अब वो महफूज है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये इंसान की नादानी है क्योंकि अल्लाह ताला जहां चाहे उसे दोबारा उसी आजमाइश में डाल सकता है। फयुरसिला अलैकुम कासिफा, कासिफ ऐसी तेज तुंद हवा को कहते हैं जो कश्तियों या जहाजों को तोड़ फोड़ कर रख दे। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो चाहे तो दोबारा समंदर में भेजकर ऐसी आंधी चला दे जो तुम्हारे सहारे छीन ले। फयुगरिकाकुम बिमा कफरतुम, तुम्हारी नाशुक्री और कुफर के बदले तुम्हें गरक कर दे। यहाँ गरक होने की वजह तुम्हारा कुफर और नाशुक्री बताई गई है जो तुमने निजात पाने के बाद दोबारा शुरू कर दी थी। सुम्मा ला ताजिदू लकुम अलैना बिही तबीआ, फिर तुम अपने लिए हम पर इसका पीछा करने वाला, बदला लेने वाला या जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं पाओगे। तबी का मतलब ऐसा वकील या मददगार है जो अल्लाह ताला से मुतालबा कर सके कि उसने ऐसा क्यों किया, यानी अल्लाह के फैसले पर कोई भी चू चरा नहीं कर सकेगा। अब है आयत नंबर 70, वाला कद और बिलाशुबा यकीनन, वा हरफ अतफ है, ला लाम ताकीद है और कद हरफ तहकीक है। करम ना इज्जत दी हमने। काफ रा और मीम इसका रूट वर्ड है, फेले माजी है और जमा मुतकल्लम का सीगा है। बनी आदमा औलाद आदम को, बनी ये इसम है और मजाफ है और आदमा ये इसम अलम है और मजाफ अलह है और ये मुरक्कब इजाफी है। वह हमल ना हम और सवार किया हमने उन्हें। वाह हरफ अतफ है, हमल ना फेल माजी है जमा मुतकल्लम का सीगा है और हम जो है ये जमीर मफूल है और हमल ना का रूट वर्ड है हा मीम और लाम। फिल बर्री खुशकी में मुरकब जारी है। फी हरफ जर है और अल बर्री इसम मजरूर है। वल बहरी और समंदर में, वाह हरफ अतफ है और अल बहरी इसम मजरूर है। व रज़क ना हम और रिजक दिया हमने उनको। वाह हरफ अतफ है, रज़क ना फेल माजी है जमा मुतकल्लम का सीगा है और हम जो है जमीर है मफूल है और ये जमीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। मिनत तय्यबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, मिन हरफ़े जर है और अत-तय्यबात इसम है जमा मुअन्नस सालिम और मजरूर है और मिनत तय्यबाती ये मुरक्कब जारी है। व फद्दलनाहुम और फजीलत दी हमने उनको। वा हरफ़े अतफ है और फद्दलना फ़िल माज़ी है जमा मुतकल्लम का सीगा है और हम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए और मफूल है। अला कसीरिन बहुत सो पर, अला हरफ़े जर है, कसीरिन इसम है और सिफ़त है और मजरूर है। मिम्मन उनमें से जो, मिन और मन का ये मजमुआ है और मिन हरफ जर है, मन इसम मसऊल है, इसम मौसूल है। खलकना पैदा किया हमने, हा लाम और काफ इसका रूट वर्ड है, फेल माजी है जमा मुतकल्लम का सीगा है। तफदीला बड़ी फजीलत देना और ये फा दुआत और लाम इसका रूट वर्ड है, मस्तर है और मफूल मतलक है और ये मंसूब है और इसका बाम मुहावरा तर्जुमा है। और बिलाशुबा हमने यकीनन औलाद आदम को इज्जत दी है और हमने उन्हें खुशकी और समंदर में सवार किया और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिज़्क दिया और हमने जिनको पैदा किया इनमें से बहुत सो पर इनको फजीलत दी, बड़ी फजीलत देना। वाला कद करमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने इंसान के जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से पैदा फरमाया जबकि बाकी तमाम महलूक को कलमा कुन से पैदा किया।
इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत, सीधा कद और हाथों से खाने पीने का सलीका अता करके मुअज़्ज़ज़ बनाया। इंसान को अकल और इख्तियार, गोयाई, बोलने की ताकत और अपने इल्म तजर्बात को लिख कर अगली नस्ल तक पहुँचाने की सलाहियत बख्शी। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए खुश्की पर जानवरों और दीगर सवारियों को मुसख्खर किया और समंदरों में बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र को मुमकिन बनाया, ताकि वो दूर दराज के इलाकों से फ़ायदा उठा सके। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, इंसान को ऐसी लज़ीज़ और पाकीज़ा चीज़ें अता की जो दूसरी महलूकात को मयस्सर नहीं। ज़मीन की हर चीज़ और हर जानवर को इंसानों के काम में लाने का सलीका अल्लाह ही ने सिखाया। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफ़दीला, इससे मुराद ये है कि इंसान को कायनात की बहुत सी महलूकात जैसे कि हैवानात, जिन्नात, इन तमाम पर बर्तरी हासिल है। इस आयत से बाज़ उलमा ने इस्तदलाल किया है कि इंसान फरिश्तों से भी अफजल है, क्योंकि इसे ख्वाहिशात और नफ्स के बावजूद अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया। अब है आयत नंबर 71। यौमा, जिस दिन, ये इसम है ज़र्फ़ ज़मान और मंसूब है। या वाव और मीम इसका रूट वर्ड है। नदउ, हम बुलाएंगे। दाल, आइन और वाव इसका रूट वर्ड है, फ़ेल मज़ारे है और जमा मुतकल्लम का सीगा है। कुल्ला उनासिन, सब लोगों को। कुल्ला, काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड है, इसम है मंसूब और मफूल बे है। मंसूब इसम का मतलब है ज़बर के साथ है। उनासिन, ये इसम है जमा और मजरूर है मज़ाफ अलैह होने की वजह से। कुल्ला उनासिन, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। बी इमामिहिम, उनके इमाम के साथ। बी हर्फ जर है और इमामी ये इसम मजरूर है। और बी इमामी ये मुरक्कब जारी है। इमामिहिम ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। फमन, फिर जिसको। फा हर्फ अतफ है, मन इसम मौसूल है। ऊतिया, दी गई। हमजा ता और या इसका रूट वर्ड है, फेल माजी मजहूल है। वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए किताबहू, किताब उसकी। काफ ता और बा इसका रूट वर्ड है, इसम मंसूब है क्योंकि ये मफूल बे है सानी। और हु जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। बी यमीनी ही, उसके दाएं हाथ में। बी हर्फ जर है और यमीनी इसम मजरूर है। या मीम और नून इसका रूट वर्ड है और ही जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। फ़उलाइका, तो ये लोग। फ़ा हर्फ़े अतफ़ है, उलाइका इसमें इशारा है जमा के लिए। यक़राऊना, पढ़ेंगे। और काफ रा और हमज़ा इसका रूट वर्ड है, फ़ेल मज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। किताबहुम, अपनी किताब। काफ ता और बा इसका रूट वर्ड है, इसम मंसूब है मफूल बे होने की वजह से। और हुम जो है ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। वला युज़लमूना, और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। वा हर्फ़ अतफ़ है, ला हर्फ़ नफ़ी है। युज़लमून फ़ेल मज़ारे मजहूल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। ज़ौ, लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। फ़तीला, खजूर की गुठली के धागे बराबर। फ़ा, ता और लाम इसका रूट वर्ड है, इसम मंसूब है और मफ़ूल मुतलक या तमयीज़ है। और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, जिस दिन हम सब लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। फिर जिसको इसकी किताब इसके दाएं हाथ में दी गई, तो ये लोग अपनी किताब पढ़ेंगे और उन पर खजूर की गुठली के धागे बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बी इमामिहिम, यहाँ पे मुफस्सिरीन के मुताबिक इमाम के दो बड़े मायने हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम या वो नेक और बद लोग जिनकी दुनिया में पैरवी की गई, अहले ईमान के इमाम इनके अंबिया होंगे, जबकि कुफ़ार के इमाम उनके बातिल सरदार होंगे। और दूसरा इसका मतलब इमाम का किताब है, जैसा कि सूरह यासीन की आयत है कि वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, इसमें इमाम से मुराद किताब मुबीन या कुरान पाक है। यहाँ पे हमारे मुफस्सिरीन ने इस आयत से ये इस्तदलाल किया है, इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हमारे इमाम तो हमारे पैगंबर हैं। फमन उतिया किताबहू बियमीनी, ये वो खुश नसीब लोग होंगे जो दुनिया में हदायत पर चले और उन्हें उनका रिकॉर्ड दाएं हाथ में थमाया जाएगा, जिसे वो खुशी और फख्र के साथ सबको दिखाएंगे और पढ़ेंगे। वला युज़लमूना फतीला, फतील से मुराद खजूर की गुठली के दरमियान पाया जाने वाला बारीक सा धागा है। इसका मतलब ये है कि उनकी नेकियों के सवाब में ज़र्रा बराबर कमी नहीं की जाएगी और ना ही किसी चीज़ पर यानी उन पर किसी भी नाहक सज़ा का बोझ डाला जाएगा। अब है आयत नंबर 72 और 73। वमन, और जो। वा हर्फ़ अतफ़ है, मन इसम मौसूल है। काना है फ़ेल नाक़िस है और माज़ी का सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। फ़ी हाज़िही, इस दुनिया में। और ये मुरक्कब जारी है, फ़ी हर्फ़ जर है और हाज़िही इसमें इशारा है वाहिद मुअन्नस के लिए। आमा, अंधा। आइन मीम और या इसका रूट वर्ड है, इसमें सिफ्त है। फ़ा हुआ, तो वो। फ़ा हर्फ़ अतफ़ है और हुआ ज़मीन मुनफ़सिल है।
واحد मुज़क्कर गायब के लिए फिल आखिराती आखिरत में, और ये मुरक्कब जारी है, फी हर्फ जर है और अल आखिराती इसम मजरूर है, हमजा खा और रा इसका रूट वर्ड है। आमा अंधा होगा, ये इसम सिफ्त है और यहाँ पे जज़ा के तौर पर आया है। व अदल्लू और बहुत ज़्यादा भटका हुआ, वाह हर्फ अतफ है, अदल्लू दुआद लाम लाम इसका रूट वर्ड है और ये इसमें तफ्दील है सबीला रास्ते से, सीन बा और लाम इसका रूट वर्ड है, ये इसम है और मंसूब है और यहाँ पे तमीज़ के तौर पे आया है। व इन और बिलाशुबा, वाह हर्फ अतफ है और इन जो है ये असल में इन मुखफ़फ़ा है मिन थकीला, यानी ये असल में इन्ना था और यहाँ पे ताकीद के लिए आया है। कादू करीब थे वो सब, काफ वाव और दाल इसका रूट वर्ड है, ये फ़ेल मकारबा है, फ़ेल माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। ला यफ्तनीनूना का, कि ज़रूर बहका दें आपको। ला जो है यहाँ पे लाम फारका है, ये बताने के लिए कि ये इन नफ़ी वाला नहीं बल्कि ताकीद वाला है। यफ्तनून ये फ़ेल मज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फ़ाता और नून इसका रूट वर्ड है और का जो है ये ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की और मफ़ूल बे है अनिल्लाज़ी उससे जो, अन हर्फ़े जर है और अल्लाज़ी इसम मौसूल है। औ औहैना वही की हमने, वाव हा और या इसका रूट वर्ड है, फ़ेल माज़ी है और जमा मुतकल्लम का सीगा है इलैका आपकी तरफ। इला हर्फ़े जर है और का जो है ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए और ये मुरक्कब जारी है लितफ्तरी ताकि आप घर लाएँ और ली लामे तालील है। तफ्तरी यहाँ पे तफ्तरी जो है ये फ़ेल मज़ारे मंसूब है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। इसका रूट वर्ड है फ़ा रा और या, जिसका मतलब झूठ गढ़ना या तराशना होता है। अलैना ऊपर हमारे, अला हर्फ़ जर है और ना जो है ज़मीर है और ये मुरक्कब जारी है गैरहू उसके अलावा। गैर इसम है और हू ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए और वही की तरफ लौट रही है। व इज़ा व इज़न और तब, वा हर्फ़ अतफ़ है, इज़न जो है ये हर्फ़ जवाब व जज़ा है। लत्तहज़ू का ज़रूर बना लेते वो आपको, लाम यहाँ पे लाम ताकीद है। इत्तहज़ू का फ़ेल माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए और का जो है ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की और मफ़ूल अव्वल है खलीला वली दोस्त। हा लाम लाम ये मफ़ूल सानी है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। और जो इस दुनिया में अंधा है वही आखिरत में भी अंधा होगा और वो रास्ते से बहुत ज़्यादा भटका हुआ होगा और बिलाशुबा करीब था वो आपको ज़रूर बहका दे उससे जो हमने आपकी तरफ वही की है, ताकि आप हमारे ऊपर इसके अलावा कोई बात घर लाएं और तब वो आपको ज़रूर वली दोस्त बना लेते। वमन काना फी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरती आमा। मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ अंधे से मुराद बसारत का अंधा होना नहीं, बल्कि दिल की बसीरत का अंधा होना है, यानी वो शख्स जिसे अल्लाह की दी हुई अकल और हवास से काम नहीं लेता, अल्लाह ताला की जितनी भी निशानियाँ इस कायनात में फैली हुई हैं उनको नहीं देखता और हक को पहचानने और कबूल करने से महरूम रहा है, वो अंधा है। जो शख्स दुनिया में हक के मामले में अंधा बना रहा, अल्लाह ताला इसे आखिरत में भी अंधा करके उठाएगा। ये उसके दुनियावी अमल की तरह ही की सज़ा होगी। जिस तरह उसने दुनिया में हक का रास्ता ना देखा, वो आखिरत में जन्नत का रास्ता ना देख सकेगा। व अदल्लू सबीला, ऐसे शख्स को राह निजात से बहुत दूर और भटका हुआ करार दिया गया है, क्योंकि उसने हदायत के तमाम मौके ज़ाया कर दिए। व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी, इस आयत में मक्का के उन मुशरिकीन का ज़िक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि आप सल्लम वही के अहकामात में कुछ नरमी पैदा करें या उनके बुतों के हक में कुछ कलमात कह दें। उनकी ख्वाहिश थी कि आप सल्लम दीन के मामले में इनसे समझौता कर लें। मुशरिकीन कहते थे कि अगर आप सल्लम हमारे मबूदों के बारे में कुछ रियायत दे दें या अल्लाह की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर दें जो वही में नहीं है, तो हम आप सल्लम को अपना खलील यानी गहरा दोस्त बना लेंगे। व इज़न लत्तहज़ू का खलीला, अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमाया कि ये कुफ़ार की एक नाकाम कोशिश थी और उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला ने ही आप सल्लम को साबित कदम रखा, वरना उनका दबाव बहुत ज़्यादा शदीद था। अब है आयत नंबर 74 और 75। वलौला और अगर ना होता, वाव इस्तिनाफिया है जो नए जुमले के आगाज़ के लिए आती है। लौला हर्फ़ शर्त है, अन ये के, और ये फ़ेल को मस्दर के मानी में कर देता है, हर्फ़ मस्दरिया है। सब्बतना का साबित कदम रखते हम आपको, सब्बतना फ़ेल माज़ी है, जमा मुतकल्लम का सीगा है और का जो है ये ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की और मफ़ूल बे है। लक़द बिलाशुबा यकीनन, ला लामे तस्मिया या ताकीद है और कद जो है ये हर्फ़ तहकीक है। इत्ता करीब थे कि आप,
اور یہ کاف واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، افعال مقاربہ میں سے ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ تارکانو جھک جاتے، سارکانو فعل مضارع ہے، را کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ الیہم ان کی جانب، الہ حرف جر ہے اور ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ شیئن کچھ، اور یہ مفعول مطلق یا مفعول بے ہے، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور حالت نصب میں ہے۔ قلیلاً تھوڑا، اور یہ کاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ شیئن کی صفت ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور شیئن قلیلا یہ مرکب توصیفی ہے۔ اذن تب حرف جواب و جزا ہے ناصبہ۔ لا اذقنا کا ہم چکھاتے آپ کو، لا لام تاکید ہے، اذقنا فعل ماضی ہے، زال واو اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے اور کا ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی اور مفعول ہے، ضعفا دگنا، ضاد عین اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے اور مفعول بے ہے اس لیے منصوب ہے، الحیاتی زندگی کا۔ ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ باللام ہے، مجرور ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے۔ وضیف المماتی اور دگنا موت کا، دیفا یہ اسم ہے اور مفعول بے ہے اور المماتی اسے مجرور ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے۔ میم با اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر حرف عطف ہے، لا تاجدو نہ آپ پاتے، لا حرف نفی ہے، تاجدو فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ لا کا اپنا، لام حرف جار ہے اور کا ضمیر مجرور ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ علینا ہمارے خلاف، الا حرف جار ہے اور نا ضمیر ہے متکلم کی۔ نصیرہ کوئی مددگار، نون سواد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مبالغے کا صیغہ ہے اور منصوب ہے مفعول بے ہونے کی وجہ سے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے، تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے فتنے اور ان کے مطالبات کے سامنے ثابت قدم رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ذرا بھی نہیں جھکے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اتنی سلیم اور پاکیزہ تھی کہ اگر اللہ کی خاص توفیق شامل حال نہ ہوتی تب بھی آپ ان کی طرف مکمل مائل نہ ہوتے، بلکہ صرف مائل ہونے کے تھوڑے سے قریب ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معمولی میدان کے قریب جانے سے بھی محفوظ رکھا۔ مشرکین چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغامات میں کچھ سمجھوتا کر لیں تاکہ وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق پر مضبوطی سے جھکائے رکھا۔ اذن لا اذقناک ضیف الحیاتی و ضیف الممات، یہ آیت اصل میں ایک مفروضے پر مبنی ہے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بتایا جا سکے کہ دین کے معاملے میں ذرا سا جھکاؤ بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ مفسرین کے مطابق اللہ کے مقرب بندوں اور انبیاء کی ذمہ داری چونکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے فرضی طور پر ان سے ہونے والی معمولی لغزش کی سزا بھی دوسروں سے دگنی ہوتی ہے، خواہ وہ دنیا کی زندگی ہو یا قبر اور آخرت کی۔ پھر تم کوئی مددگار نہ پاتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نبی کو بھی نہیں بچا سکتا اگر وہ بالفرض محال مشرکین کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین عموماً اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے تاکہ دل حق پر قائم رہے۔ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ وَإِن اور بلا شبہ وا حرف عطف ہے، ان جو ہے مخففہ من الثقیلہ ہے، یعنی ثقیل جو انہ ہے اس سے خفیف ہو کے نکلی ہے، اور یہاں پہ بے شک کے معنی میں ہے، کادو وہ قریب تھے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، افعال مقاربہ میں سے ہے۔ لا یستفزون کا کہ وہ ضرور اکھاڑ دیں آپ کے قدم، فا زائی زائی اس کا روٹ ورڈ ہے، لام جو ہے یہ لام فارقہ ہے، یستفزون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی اور مفعول بے ہے۔ من الارضی زمین سے، من حرف جار ہے اور الارضی اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے۔ لیخرجو کا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، لی لام تعلیل ہے اور یخرجو فعل مضارع منصوب ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور کا ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی اور مفعول ہے۔ منہا اس سے، من حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کے لیے جو الارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ واذن اور تب، یہ حرف جواب و جزا ہے۔ لا یلبثون نہیں وہ ٹھہر پائیں گے،
ला हर्फ नफी है और यलबसूना फ़िल मज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। खिलाफा का आपके पीछे, हा लाम और फा इसका रूट वर्ड है। ये खिलाफा ज़र्फ़े मकान है, इसम है, और का जो है ज़मीर है, मज़ाफ़ अलैह है। कलीला बहुत कम, काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड है। इल्ला अदाते खसर है, कलीला सिफ्त है, और इसका बामुकाबला तर्जुमा है और बिलाशुबा करीब था कि वो ज़रूर इस ज़मीन से आपके कदम उखाड़ दें ताकि आपको इससे निकाल दें, और तब आपके पीछे वो बहुत कम ठहर पाएंगे। व इन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्द, इस हिस्से में उन साजिशों का जिक्र है जो कुफार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तैयार की थी। वो चाहते थे कि आप सल्लम को मक्का की सरजमीन से इस तरह बेदखल कर दें कि आपका दोबारा वहां रहना नामुमकिन हो जाए। इसका मकसद आप सल्लम के कदम उखाड़ना और आपकी दावत को खत्म करना था। लियुखरिजूका मिनहा, ये मक्की दौर के आखिरी हिस्से की बात है जब कुफ़ार का जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला वतन करने के मंसूबे बना रहे थे। कुफ़ार ने अपनी सी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और उन्हें बखैर आफियत हिजरत का हुक्म दिया। व इज़ल्ला यलबसूना खिलाफा का इल्ला कलीला, यहाँ एक अहम पेशीन गोई और कानून इलाही बयान हुआ है कि जब भी कोई कौम अपने नबी को निकाल देती है तो वो कौम खुद भी ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहती। इसका अमली नमूना हिजरत के महज 1.5 साल बाद जंग बदर की सूरत में आया। मक्का के वो तमाम बड़े बड़े सरदार जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की साजिश की थी, वो बदर के मैदान में हलाक हो गए और उनकी शान शौकत खाक में मिल गई। तमाम मुफस्सिरीन इस बात की भी निशानदही करते हैं कि अगरचे अल्लाह की सुन्नत यही है, नबी को निकालने वाली कौम हलाक कर दी जाती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए मक्का वालों पर कोई आसमानी अज़ाब जैसे कि कौम आद पर या समूद वगैरह पर आया था, वो नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि इन्हें मुसलमानों के हाथों बदर में सज़ा मिली। आयत नंबर 77, सुन्नता तरीका था, सीन नून नून इसका रूट वर्ड है, इसम मुअन्नस है, वाहिद है, और हालत नसब में है क्योंकि ये मफूले मुतलक के तौर पे आई है यहाँ पे। मन जो इसम मौसूल है, कद अरसलना भेज चुके हम, कद हरफ तहकीक है, अरसलना फेल माजी है, जमा मुतकल्लम का सीगा है, रा सीन और लाम इसका रूट वर्ड है। काबला का आपसे पहले, कबल ज़र्फ़ ज़मान है वक़्त के लिए, काफ बा और लाम इसका रूट वर्ड है, और देखिए काबला भी मंसूब है, का ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए, और मज़ाफ़ अलैह है। मिर रुसुलिना अपने रसूलों में से, मिन हरफ जर है और रुसुली इसम मजरूर है, जमा मुकस्सर है, और ना ज़मीर है जमा मुतकल्लम की, वला ताजिदू और ना तुम पाओगे, वा हरफ अतफ है, ला हरफ नफ़ी है, ताजिदू ये फ़िल मज़ारे है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए, वाव जीम और दाल इसका रूट वर्ड है। लिसुन्नतिना, लिसुन्नति ये ली हरफ जर है और सुन्नति इसम मजरूर है, और ना जो है ये ज़मीर है जमा मुतकल्लम की, और ना तुम पाओगे हमारे तरीके में तहवीला कोई तब्दीली। तहवीला इसम है, मस्तर है और हालत नसब में है, मफूल बे होने की वजह से हा वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, उनका तरीका था जो आपसे पहले हम अपने रसूलों में से भेज चुके हैं, और आप हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। सुन्नता मन कद अरसलना काबलक, इससे मुराद वो कानून है कि जब भी किसी कौम ने अपने नबी को अपने वतन से निकाला या उसे निकलने पर मजबूर किया तो वो कौम खुद भी अल्लाह ताला के अजाब से ना बच सकी और जल्द ही हलाक कर दी गई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितनी भी उम्मतें आईं, जिनमें आद, समूद, कौम शुएब, कौम लूत और फ़िरौन कौम मूसा थी, वो सब हलाक हुई। इनकी हलाकत की सबसे बड़ी वजह रसूलों की नाफरमानी और उन्हें निकालने की कोशिश थी। और आयत का आखिरी हिस्सा वला ताजिदू लिसुन्नतिना तहवीला, ये वाज़ह करता है कि अल्लाह का ये कायदा कभी नहीं बदलता। अगर अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला तो अल्लाह के कानून के मुताबिक इनकी मोहलत भी खत्म हो जानी थी। मक्का से हिजरत के सिर्फ 1.5 साल के बाद जंग बदर पेश आई, जहां कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, और आखिरकार 8 हिजरी में मक्का जो था वो मुकम्मल तौर पर फतह हो गया, जिसके बाद कुफार मक्का कभी भी सर न उठा सके। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.